glycosidic linkage. Whenever a polysaccharide consists of only one type of monosaccharide unit, they are said to be homopolysaccharide. But when they have more than one different kind of monosaccharide units, they are said to be heteropolysaccharide. All the polysaccharides either may be the straight chain compound or may be the branched chain compound, depending on their nature. Now the stereochemistry of carbohydrate, and this is the most important section of the carbohydrate. Here, this is the structure of glyceraldehyde in the slide number 10. When we observe the structure of glyceraldehyde, we found that it is a 3-carbon compound having a functional group aldehyde. Observe कर रहे होंगे CHO ऊपर लिखा हुआ है aldehyde, and in the center there is the black color chiral carbon atom to which there is attached CH2OH, and at one valency there is hydrogen, and at one valency there is hydroxyl group. Because all the 4 valency are occupied by different groups, hence it is a chiral carbon atom or asymmetric carbon atom, and this is why it shows the optical isomerase. And number of optical isomers, number of stereoisomers, it is determined by the formula 2 की power n, where n is the number of chiral carbon atom. And we all know those organic compound which show the chirality, which exist in mirror images, they are also known as enantiomer. When we talk about the chiral carbon atom, then in the chiral carbon atom, number of carbon atom decide how many ऑप्टिकल आइसोमर विल एग्जिस्ट. ये ऑलरेडी हम लोग सब स्लाइड डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से चला रहा हूं. चिरल कार्बन एटम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने को दिया गया है स्लाइड्स में कि इस दिए गए उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए चिरल कार्बन एटम कितने हैं. जैसे इरिथ्रोस में, हु विल टेल मी हाउ मेनी चिरल कार्बन एटम बी देयर? गिव द आंसर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोस. हाउ मेनी चिरल कार्बन एटम बी प्रेजेंट? 4. Yes, how many? I am not getting the answer. 2. Two. Yes. In the erythros, there are 2 chiral carbon atom. It's first is the just below the aldehyde carbon atom. जो aldehyde group है उसके ठीक नीचे वाला कार्बन एटम chiral है, और उसके जस्ट नीचे वाला तो second और third carbon atom, they are showing the chirality. So there are number of chiral carbon atom 2 की power 2. So it will exist in how many optical isomer? Stereoisomer 4. अगर just इसके बराबर वाला ऑब्जर्व करें तो हम क्या नोट कर रहे हैं? It is a pentose sugar, but the functional group is not aldehyde, but the functional group is ketone, and therefore the chiral carbon atom are here also 2, not the 3. यहाँ पे भी chiral carbon atom कितने हैं? 2 हैं. तो इसके भी ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4. If I ask you about it, आप लोगों के पास पेन और कॉपी होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मूला लिखे हैं. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आता है बताइए? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन CH2OH डैश C डबल बॉन्ड O CH2OH. तो बताइए इसमें कितने चिरल कार्बन एटम है? बता सकते हैं? यस, जल्दी बताइए. एक भी नहीं है बेटा चिरल कार्बन एटम. अगर गौर करें फंक्शनल ग्रुप, हाँ, तो नंबर ऑफ चिरल्टी 0 हो गई. नंबर ऑफ चिरल्टी क्या है? 0. और 2 की पावर 0 का अर्थ होता है किसी भी नंबर पर 0 पावर का मीनिंग क्या होता है? कि वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 0 की?
की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? केवल सिंगल। अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, देखिए स्लाइड में 15 नंबर की जो स्लाइड है, फंक्शनल ग्रुप के CHO के जस्ट पहला कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। नंबर ऑफ द 4, देयर आर 4 कार्बन एटम विच आर कीरल कार्बन एटम। 4 कीरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, और जब यहाँ पे 4 कीरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 2 की पावर 4, यानी कि इट इज द 2n रूल दैट डिटरमाइंस नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पर मैंने ये दिखा रहा हूँ स्लाइड के अंदर, कुछ कंपाउंड मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे स्लाइड में, और इस कंपाउंड के अंदर हमें क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। जैसे C से यहाँ पर 4 वैलेंसी पे, एक पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक पर ब्रोमीन अटैच्ड है, एक पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, एक पे फ्लोरीन। तो यहाँ पे चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाई है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 1 यानी 2। अगले वाले में 2 कीरल कार्बन एटम है तो 4। उससे आगे जाएं तो ये एक आपके लिए एक्सरसाइज हो गई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर इन द गिवन कंपाउंड। बाद में ये आप जूम से सर आपको भेज देंगे, अभी मैंने सर को भेज दिया है पूरे, तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए घर पर नोट कीजिए। जरा फिशर प्रोजेक्शन को ओपन कर लें। फिशर प्रोजेक्शन पे ध्यान देंगे 19 नंबर स्लाइड में। तो क्या नोट कर रहे हैं हम कि फिशर प्रोजेक्शन आर द कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द मिरर इमेजेस इन 2 डायमेंशन। When we look at the structure of glyceraldehyde, so we find the orientation of OH group attached to the chiral carbon atom is different in both the structure. अगर हम राइट हैंड वाले साइड को देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कीरल कार्बन एटम, जो कीरल कार्बन एटम से अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये राइट हैंड साइड वाले पे तो राइट हैंड में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर बना हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड पे है। यानी कि इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द एसिमेट्रिक और कीरल कार्बन एटम दैट डिटरमाइन ईदर द गिवन मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और इट इज ईदर द लीवोरोटेटरी। हियर द डेक्स्ट्रो, D फॉर डेक्स्ट्रो, L फॉर लीवो। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी टर्म विद ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इफ इट लाई ऑन द राइट साइड then it is the dextrorotatory, or if it lie on the left hand side it is levorotatory. We all know that monosaccharide are solid in nature and they usually dissolve in water forming the aqueous solution, or in the aqueous solution their molecule develop ring structure. Because their molecule develop the ring structure, so that the orientation of the hydroxyl group determine either it is dextro group or either it is levo group, or it is decided by keeping the aqueous solution in the path of plane polarized light, or if it has a tendency to rotate the light towards the right hand side, it is called dextro sugar, or if it rotates the light towards left hand side, it is called levorotatory. So the name is given D and L. Either it is dextroglucose, dextro, or levoglucose, it is dextroerythrose, levoerythrose solution, or whatsoever. फिशर प्रोजेक्शन इसी तरह से अगर हम सब में देखते जाएं तो हम नोट करेंगे कि हम कहीं पर भी ये डिसाइड कर सकते हैं, either it is a D or L sugar. Suppose in the case of फ्रक्टोज, देखिए एग्जाम्पल में 22 नंबर स्लाइड में अगर हम गौर से देखें, कार्बोनिल इज द C डबल बॉन्ड O, कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप। तो इससे जो सबसे फार्थेस्ट कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, कार्बोनिल के जस्ट नीचे वाला कार्बन पहला हो गया एसिमेट्रिक, उसके नीचे वाला दूसरा और उसके नीचे वाला तीसरा। तो जो थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम है
उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो इट वुड बी कॉल्ड डी फ्रक्टोज। और यदि यही OH जो थर्ड कार्बन एटम पे है कार्बोनिल की पोजीशन से नीचे की ओर, या CH2OH के ठीक ऊपर, तो ये कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ये लेफ्ट एंड पे चला जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड लीवो फ्रक्टोज या एल फ्रक्टोज। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है एक्वस सॉल्यूशन की, कि वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट कराता है या राइट हैंड साइड पे, ये डिटरमाइन करती है उसके लीवो रोटेटरी नेचर को और डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes, हेलो? sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी। Yes, और sir. अगर कोई दिक्कत हो तुरंत बीच में इंटरप्ट कर दीजिएगा। When we talk about the monosaccharide, then monosaccharide usually solid in nature and sweet in taste, and they have minimum number of carbon atom 3 and maximum number of carbon atom 7. Whenever there are present 3 carbon atom in a given monosaccharide, it is said to be the triose sugar. And the well-known example of the triose sugar is glyceraldehyde and dihydroxyacetone. And we have to properly claim the example of these sugar, because all the example are of utmost importance in the glycolysis pathway in case of Calvin cycle. Until we have the proper claiming of example of these sugars, we cannot prepare the glycolysis, we cannot prepare the cyclic pathway of glycolysis or Calvin cycle. तो triose का well known example जो commonly used होता है, it is the glyceraldehyde and dihydroxyacetone. It is a 3 carbon sugar, hence called triose sugar. ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड नाम आ रहा है उसमें, तो क्लियर है फंक्शनल ग्रुप इज द एल्डिहाइड। एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, टोन वर्ड को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो क्या महसूस हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन। Ketone. हाँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर, यानी ट्रायोस शुगर शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या शो करती है ये? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर 4 कार्बन शुगर इज द टेट्रोस, एंड वेल नोन एग्जांपल ऑफ द टेट्रोस शुगर इज इरिथ्रोस. That is very good example used in Calvin cycle. 5 carbon sugar is the pentose, and the most common pentose sugar are ribose, deoxyribose, xylulose, and the ribulose. There are 4 very important example of the pentose sugar. One is the ribose sugar, second is the deoxyribose sugar, third is the जाइलूलोज और फोर्थ इज द रिबुलोज. ये बेटा एग्जाम्पल नोट कर लेना, इसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, जो जो आप नोट करना चाहो नोट करते जाइए. 6 कार्बन शुगर इज हेक्सोज, और द मोस्ट कॉमन एवरी डे वी मीट विद ए हेक्सोज शुगर एग्जाम्पल दैट इज वेरी कॉमन इज विच वन? ग्लूकोज. ग्लूकोज, फ्रक्टोज and galactose are the most common example of hexose sugar. आप सभी लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट टीवी पे जरूर देखा होगा जिसमें एक लाइन आती है, जान डाल दे पीते ही. किसके आगे है ये लाइन? ग्लूकोन डी. ग्लूकोन डी, जान डाल दे पीते ही. यानी कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ग्लूकोज लेते हैं, glucose is called instant source of energy because it immediately oxidize and yield the energy. पता है या नहीं? Yes. Yes. Yes, sir. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलती है? एनीबॉडी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये तो बेटा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट whenever oxidized it yield 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी. 1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन होता है, it yield
7 किलो कैलोरी एनर्जी, एंड बिकॉज कहते हैं ना कि 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से ज्यादा एनर्जी मिलती है, फिर भी फैट इज नॉट कॉल्ड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज इज कॉल्ड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई? तो इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करके रखिए नेक्स्ट लेक्चर तक। 7 कार्बन शुगर इज कॉल्ड हेप्टोज शुगर। 7 कार्बन शुगर इज कॉल्ड हेप्टोज शुगर, और हेप्टोज का वेल नोन एग्जाम्पल सीडोहेप्टुलोज। क्लियर है मेरी बात? ये शुगर आपने नोट कर ली होंगी सभी, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताए सीडोहेप्टुलोज तक, सभी आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आता है मोनोसैकेराइड के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। Either the functional group is CHO or it is CO. Either it is aldehyde or it is the ketone. Depending on this, there are two kind of monosaccharide. One is called aldose sugar, another is called ketose sugar. Where the aldehyde is the functional group, it is called aldose sugar, or where the functional group is ketone, it is called ketose sugar. Here the two examples have been shown. One is glucose, another is ribulose. One is containing the functional group CH double bond O, that is the aldehyde. Hence the glucose is an example of aldohexose. Hexose because it is a 6 carbon sugar, and aldo word आगे जोड़ा है because it is containing the functional group CHO. In the nearby adjacent example, this is the ribulose. In the ribulose, the functional group is C double bond O. It is a ketone. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon are there. That's why it is a pentose sugar. And ketone is the functional, hence it is called ketopentose sugar. Now, we take example further. Identify or classify the monosaccharide sugar. You tell me on the basis of these example, the first one example containing how many carbon atom? In the first example जो डायग्राम में दिख रहा है, इसमें कितने कार्बन है? So 4. 4. तो ये कितने कार्बन की शुगर हुई? 4 की, यानी टेट्रोस शुगर। और टेट्रोस में फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है हमें? कीटोन। Hence it is a ketotetrose sugar. Similarly, we have to tell about the next example. तो इसी तरीके से हमें क्लासिफाई करना है बाकी एग्जाम्पल्स को भी कि ये कौन सी शुगर का एग्जाम्पल है। नाउ द फैमिली ऑफ डी एल्डोज, डेक्स्ट्रो और एल्डोज वर्ड आ गया, यानी कि एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये आप लोग सेल्फ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन द फर्स्ट वन द नंबर ऑफ कीरल कार्बन एटम इज 1, हेंस द एल्डोट्रायोस के पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 1 यानी इक्वल टू 2, यानी ग्लिसरल्डिहाइड एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमर। Next one, erythros or threos. There are 2 asymmetric carbon atom, hence the possible number of stereoisomer 2 की power 2 यानी 4. Similarly, you have to recognize these example and give your answer. Satisfy your answer. Now the family of D-ketones, यानी where the functional group is ketone, और very first example is dihydroxyacetone, which I discussed recently. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कोई भी कीरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। C डबल बॉन्ड O के बाद CH2OH है नीचे, तो कोई भी कीरल कार्बन एटम नहीं है, इसलिए पावर आई है 2 की पावर 0, यानी इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? केवल ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसका कोई भी अलग से आइसोमर प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी तरीके से आप इनको स्टडी करेंगे तो you will get all the answer satisfactorily by yourself. Now next one, physical properties of the monosaccharide. When we study the physical properties of monosaccharide,
So we have studied that all monosaccharide are sweet in taste, solid at room temperature. एक pinch अगर हम इसकी ले लें चुटकी भर और अपने जीभ पर रखें, तो we find them as sweet in taste. Fructose is the sweetest among all the monosaccharide, and sucrose is a cane sugar. सुक्रोज की स्वीटनिंग इंडेक्स होती है 100, तो उसका 73% ये ज्यादा स्वीट है, यानी कि फ्रक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स हो गया 173। और अगर हम सुक्रोज को 1 मान लें तो फ्रक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स हो जाता है 1.73। दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड आर हाईली soluble in water, easily get dissolved in water when when allowed to नेक्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे स्वीटनिंग इंडेक्स को मैंने टेबल फॉर्म में लिया। लैक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स है 0.16, गैलेक्टोज 0.22, माल्टोज 0.32, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू सुक्रोज है, यानी इन सभी की स्वीटनिंग इंडेक्स सुक्रोज से कम है। सुक्रोज का 1 है, इनवर्ट शुगर 1.30, फ्रक्टोज की कितनी है 1.73, यानी फ्रक्टोज इज मोर स्वीट देन द sucrose in taste, and fructose has the maximum sweetening index among all the monosaccharide and all the carbohydrates. Now here, this is the structure, chemical properties of the monosaccharide. As I already told you that the aqueous solution has a tendency not to exist in open chain form. इसके जो aqueous solution होते हैं ये open chain form में रहना नहीं चाहते, तो therefore they react with the alcohol group of their own structure. जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, इधर द कीटोन और द एल्डिहाइड ग्रुप, वो अपनी ही स्ट्रक्चर के कार्बन एटम, जो सबसे दूर कार्बन एटम होता है, फार्थेस्ट कार्बन एटम होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो रिएक्शन कर जाता है। As a result of this, there is formed either hemiacetal or hemiketal form. If the carbon is containing, if the number of carbon atom in the monosaccharide is 6, suppose glucose की बात कर रहे हैं हम लोग, and it is containing the functional group aldehyde, then it always follow the structure of pyranose ring. यदि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे मैटर के ठीक नीचे लिखा हुआ, तो पायरेनोस रिंग की स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें हमने एक तरफ ऑक्सीजन एटम दिखाया हुआ है, इसी के बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, जो हमने बिल्कुल बराबर में बनाई है। और यदि हम एक साइड ऊपर की तरफ देखें, जो डी ग्लूकोज ऊपर की तरफ लिखा है, तो उसमें हम क्या नोट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है CHO, उसके बराबर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 कार्बन एटम तो रिंग में दिखाई दे रहे हैं हमें। 1 2 CHO से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और एक जो 5वां नंबर कार्बन एटम है एक CH2OH उसके बाहर जा रहा है, तो यानी कि जो 6 नंबर का CH2OH है वो आउटसाइड रहता है रिंग के। अब जो 5th नंबर पे ध्यान से अगर नोट करें हम, तो 5th नंबर में एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी पे CH2OH है, नीचे की ओर जो वैलेंसी है वो दूसरे कार्बन से जुड़ी है, और आगे की ओर जो उसका OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन एटम से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, और वो अपना ये ऑक्सीजन लोन पेयर एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम को दे देती है। जैसे ये अपने एल्डिहाइड ग्रुप को लोन पेयर देगी, ठीक इसका हाइड्रोजन ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हुआ इसके ऊपर शिफ्ट होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक हेमी एसाइटल फॉर्म बन जाएगी, हेमी एसिटल फॉर्म बन जाएगी, और ये पूरी रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। whenever in this ring structure the first carbon atom का हाइड्रोक्सिल ग्रुप it lie above it, यदि इस कार्बन के ऊपर रहता है,
then it is the beta structure. और यदि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन एटम के नीचे आता है, यानी कि अगर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ लाई अपार्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम, यदि ये ऑक्सीजन एटम से दूर चला गया या सेकंड कार्बन एटम के पास आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन इट इज द अल्फा. और यदि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सेकंड कार्बन पोजीशन से दूर चला जाता है या ऑक्सीजन एटम के पास आ जाता है, then it is the beta structure. So there are two forms, one is the alpha, second is the beta, depending on the orientation of hydroxyl group attached to first carbon atom. If it lie upside on the upper side, then it is the beta structure, or it lies on the downside, then it is the alpha structure. This is, if we study this structure, then what we are finding here, that there is the only one carbon atom in which the position या orientation of hydroxyl group they differ from each other. ये दोनों एक दूसरे से केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में अंतर खा रहे हैं. फर्स्ट कार्बन एटम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हावर्थ स्ट्रक्चर में,